students, good morning. Today again we will discuss determinants related to class 12th, our chapter 4th, in which we are discussing NCERT exercise 4.2 question number 13. Prove that in first row 1 plus a square plus a 1 plus a square minus b square, 2ab minus 2b. In second row 2ab 1 minus a square plus b square, 2a. And in third row 2b minus 2a and 1 minus a square minus b square. This we have to prove is equal to 1 plus a square plus b square whole cube. This we have to prove. So now, before starting question, let me tell you that please watch it till last, like it, subscribe it and share it as much as possible. So first of all, in solution we have to take LHS. LHS is taken here. In first row it is 1 plus a square minus b square, 2ab and minus 2b. Now in second row 2ab 1 minus a square plus b square and 2a. Now in third row 2b minus 2a and 1 minus a square minus b square. These are the elements. So first of all we are attempting it in such a manner that if we apply in R1 plus b R3 means what we are multiplying here, b, so that it will become 2b square. So 1 plus a square minus b square plus 2b square. So this will become 1 plus a square plus b square. 1 plus a square plus b square. Because 1 plus a square minus b square plus 2b into b, that is 2b square. So 1 plus a square minus b square plus 2b square means 1 plus a square plus b square. Now 2ab minus 2ab. In 2a we have to multiply b. So 2ab minus 2ab, that is 0. And now minus 2b minus b minus a square b minus 2b minus b minus a square minus minus plus a square b minus minus plus b cube. So minus 2b plus b minus a square b and minus b cube. What we are doing, R1 plus b R3. So b we have multiplied here and then added. So minus 2b plus b into this means b into 1 is b. B into a square is a square b and b square into b is b cube. Now in second row we are applying one more property in R2 minus a R3. In R2 what we are applying? R2 minus a R3 means 2ab minus 2ab, that is 0. Now 1 minus a square plus b square plus 2a square. 1 minus a square plus b square plus 2a square. Minus minus plus, this minus and this minus plus, and a into 2a is 2a square. So 1 minus a square plus b square plus 2a square means 1 plus a square plus b square. This will become 1 plus a square plus b square. And now here it is 2a minus a minus minus plus a cube minus minus plus a b square, like this, because a we have multiplied here and then subtracted. So all signs are changed. Here it is minus, this will become plus and this will become plus. Now 2b minus 2a and last element is 1 minus a square minus b square. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले R1 में R1 प्लस b R3 किया, तो b का इसमें इंटू किया तो प्लस 2b स्क्वायर हो गया. तो 2b स्क्वायर में माइनस b स्क्वायर गया तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसलिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया था. यहाँ 2ab माइनस 2ab हो गया तो ये 0 हो गया, क्योंकि हमने R1 में R1 प्लस b R3 किया था. तो इसमें b का इंटू करके इसको जोड़ा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन था, तो 2ab माइनस 2ab से 0 हो गया. और माइनस 2b के साथ में भी हमने b का इसमें इंटू करके इसको जोड़ दिया, तो माइनस 2b, फिर b का इसमें सब में इंटू कर दिया प्लस b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब. b का b स्क्वायर में इंटू हुआ तो b क्यूब हो गया. ऐसे ही R2 में हमने R2 माइनस a R3 लगाया तो 2ab माइनस 2ab हो गया, तो वो 0 हो गया. फिर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से a इंटू R3, तो इसमें a का इंटू करके इसको माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए मतलब 2a स्क्वायर,
तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a² मतलब माइनस और प्लस में से बड़ी वाली डिजिट के आगे प्लस लगा था, इसलिए 1 + a² + b² हो गया। और यहाँ पर 2a में से भी इसमें a का इंटू करके सारे साइन बदल दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था। तो 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस a³ माइनस माइनस प्लस ab², इस टाइप से सॉल्व हुआ। तो अब लास्टली हमको जाकर के यहाँ पर जो टर्म्स मिली वो ऐसी मिली, 1 + a² + b², यहाँ 0, और ये -2b + b मतलब माइनस b आएगा, तो -b -a² और -b³। तो -b अगर आप कॉमन लेते हैं अपन तो 1 + a² + b² बचेगा, क्योंकि -2b + b मतलब -b हो गया था, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया और साथ में b कॉमन ले लिया, तो b कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ से b कॉमन लिया तो a² बचा, यहाँ से b कॉमन लिया तो b² बचा, और माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से साइन बदल गए, तो 1 + a² + b² हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर 0, यहाँ 1 + a² + b², और इसमें 2a - a मतलब a बचा प्लस का, तो a कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से a² बचेगा, और यहाँ से b² बचेगा। अब लास्ट में ये 2b, ये -2a, और ये 1 - a² - b²। अब हमको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 1 + a² + b² फर्स्ट रो में से और 1 + a² + b² सेकेंड रो में से कॉमन आया, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। 1 + a² + b² का होल स्क्वायर कॉमन क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट रो में से भी कॉमन लिया है और सेकेंड रो में से भी कॉमन लिया है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? 1 0 -b 0 1 a और 2b -2a और 1 - a² + b²। अब इसके बाद में हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो ये एज इट इज 1 - a² - b² हो जाएगा। इसके बाद में माइनस इंटू माइनस प्लस, या माइनस इंटू माइनस प्लस लिख करके 2a के साथ में a, तो ये एक पार्ट 1 वाला सॉल्व हो गया यहां से यहां तक। इसके बाद में -0, क्योंकि यहाँ तो 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको और इसको एलिमिनेट करके, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 का इंटू होगा तो। और लास्ट में -b, और इसके साथ में -b के साथ में 0 × -2a, 0 × -2a और -1 × 2b, -1 × 2b। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है? 1 + a² + b² होल स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पर 1 - a² - b² + 2a², और यहाँ से -2a × 0, तो ये 0 ही हो गया था, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पे -2b आया केवल, तो -2b का -b में इंटू हुआ तो +2b² हो गया है। ये -2b, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो -2b का b में इंटू हुआ माइनस के, तो +2b² हो गया। ये 2b है, तो 1 × 2b -2b, माइनस इंटू माइनस प्लस 2b²। अब ये 1 - a² + 2a² मतलब 1 + a², और -b² + 2b² मतलब +b², तो 1 + a² + b² फिर से आ गया, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और इसके साथ में 1 + a² + b², तो ये 1 + a² + b² का होल क्यूब हो गया। यही हमारा RHS है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ये हमारा RHS पार्ट है, देखिए आप ऊपर, तो ये आपको RHS के इक्वल मिलेगा। इस टाइप से हमको दो प्रॉपर्टीज यूज करके और फिर उसके बाद में प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। Here we have to prove that a² + 1 ab ac in first row, in second row ab b² + 1 bc, and in third row ca cb and c² + 1
is equal to 1 plus a square plus b square plus c square we have to prove. So on taking LHS, first of all we have to write these terms: a square plus 1 ab ac, ab b square plus 1 bc, ca cb c square plus 1. अब हम यहां से अगर इस रो में से मैं a कॉमन लेता हूं, इस रो में से b कॉमन लेता हूं और इस रो में से c कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा? a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए. क्यों? क्योंकि यहां तो a था ही नहीं और कॉमन लिया है, तो इसलिए 1 के अपॉन में a लेना पड़ेगा. यहां b बचेगा और यहां c बचेगा. यहां b कॉमन लिया था तो यहां a बचेगा, यहां b प्लस 1 अपॉन b बचेगा क्योंकि इसमें से b कॉमन लिया हमने, और यहां से c बचेगा. ऐसे ही थर्ड रो में यहां से c कॉमन लिया था तो यहां a बचेगा, यहां b बचेगा और यहां से c प्लस 1 अपॉन c बचेगा. अब हम फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन ले रहे हैं, सेकंड कॉलम में से b कॉमन ले रहे हैं और थर्ड कॉलम में से c कॉमन ले रहे हैं. तो पहले हमने रो में से कॉमन लिया था, अब हम कॉलम में से ले रहे हैं. तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया यहां पर, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और यहां 1. ऐसे ही यहां पर 1 यहां 1 और यहां 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर. अब इसके बाद में हमने इसमें ए स्क्वायर का इंटू कर दिया, इसमें बी स्क्वायर का इंटू कर दिया और इसमें सी स्क्वायर का इंटू कर दिया. तो ये पूरा हटा रहा हूं मैं यहां से. अब तो अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर का इंटू करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर. मीन्स यहां पे ए स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ए स्क्वायर. मैंने मान लो ए स्क्वायर का इंटू इसमें किया है तो ए स्क्वायर यहां पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1. यहां पर ए स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर. सेकेंड रो में मैंने बी स्क्वायर का इंटू किया तो यहां बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि बी स्क्वायर का इंटू करने पर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पर बी स्क्वायर. ऐसे ही यहां पर सी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर और यहां पर सी स्क्वायर प्लस 1. ऐसे हमने इंटू कर दी. ए स्क्वायर का फर्स्ट रो में, बी स्क्वायर का सेकंड रो में और सी स्क्वायर का थर्ड रो में इंटू कर दिया. तो अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विलुप्त हो गया. ये दैट वाज एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड इनसाइड द डिटर्मिनेंट. नाउ अब अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? ये टर्म ऐसी हो जाती है इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ऐसे ही यहां पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा. यहां बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर प्लस 1, यहां बी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर प्लस 1. अब हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट रो में से कॉलम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन जब पूरे डिटर्मिनेंट में से लिया, फर्स्ट रो में से, सॉरी फर्स्ट रो में से अगर कॉमन लेते हैं तो इसके बाद में फर्स्ट रो में 1 1 1 बचेगा. सेकेंड रो में बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर. थर्ड रो में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1. अब हमको बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि हम
C1 में C1 माइनस C2 लगा दें और C2 में C2 माइनस C3 लगा दें। तो C1 में हमने C1 माइनस C2 लगाया और C2 में C2 माइनस C3 लगाया। मतलब अब हम कॉलम में लगा रहे हैं, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। और यहाँ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब 0। यहाँ 1 माइनस 1 मतलब 0। यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। यहाँ सी स्क्वायर माइनस वन क्योंकि माइनस का अंदर इंटू होगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर लास्ट में 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसके बाद में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके बाद ब्रैकेट में 0 इंटू समथिंग मतलब 0 होगा, फिर माइनस 0 तो ये और ये गया तो भी ये सब 0 हो जाएगा। सिर्फ ये प्लस 1 वाली टर्म जो रहेगी इसके साथ में माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 आएगा इसके साथ में और माइनस 0 इंटू 1 ये 0 इंटू 1 तो ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। यहाँ 0 यहाँ माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। उस 1 का 1 में इंटू हुआ तो 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो ही गया तो यहाँ से केवल 1 बचा। तो इसका मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हमारा RHS है क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही बचाएगा। 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 तो 1 इंटू 1 बचा है। ये तो 0 हो गया, ये 0 था केवल यही एक 1 बचा तो 1 का इसमें इंटू हुआ तो ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। So this exercise and this question is over. Thanks for watching it till last and please like my channel, subscribe it and share it as much as possible.